Hello student, welcome in the session number 4. In this session we are discuss about the some special features of the Google search engine, a Google web browser, such as that how we can open the new window, how we save the search past history, how we delete the search past search history, how we use the safe search, what are the some social search engine, Google social search, what are the Google instance, what are the some extent feature of the Google search engine. First we have discussed about the safe search. What is the safe search? Safe search basically it prevent the user access, you prevent the unauthorized access of the data stored on the क्लाइंट साइड और सिस्टम. सपोज आप अगर कोई भी कंटेंट एक्सेस करना चाहते हैं, कोई भी कंटेंट गूगल से सर्च करते थे, तो उस कंटेंट पर्टिकुलर कंटेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे पास एक लॉग फाइल जनरेट हो जाती है, इसको हम कुकीज़ के फॉर्म में. हमें चाहते हैं कि जब भी कोई भी कंटेंट हम सर्च करें तो इस कंटेंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे कुकीज़ नाम के फाइल में स्टोर्ड ना होने पाए. इससे क्या होगा कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन जब भी उस कुकीज़ को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो मीन्स आपकी जो रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन है वो रिस्ट्रिक्टेड इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर पर्सन के पास नहीं जा पाएगी जो उसको एक्सेस करना चाहता है. सेकंड थिंग इज द search statistics. What is the search statistics? Search statistics basically it is the mechanism which is just show the how many number of page searched and within how much time. Basically it shows the सपोज आपने कोई भी कंटेंट सर्च करने की कोशिश की, सर्च करने के लिए आपने सर्च बार में टाइप किया. टाइप करने के बाद जैसे आपने उस पर सर्च बटन पे आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके पास एक स्टैटिक्स आती है कि हमने करंट टाइम पे इतने कंटेंट को सर्च किया, नंबर ऑफ कंटेंट को, फिर पर्टिकुलर ये कंटेंट हमारे किस किस पेज को बिलोंग कर रहा है और हर कंटेंट हाउ मच टाइम टेकन बाय द गूगल सर्च इंजन टू डिस्प्ले दैट पेज. इसके हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे पास ये कंटेंट है, ये कंटेंट के अकॉर्डिंग हमारा ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, इस पेज के अकॉर्डिंग हमारा ये कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है. मीन्स हम पर्टिकुलर सबको देख लेते हैं कि ये कंटेंट है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट है, ये पेज डिस्प्ले हो रहा है, ये कंटेंट हमारा इतना टाइम पे डिस्प्ले किया. मीन्स हमारा स्टेटिक्स पूरी स्टेटिक्स आ जाती है कि हमारा टाइम कितना लिया, कितने के पेज हमारे डिस्प्ले हुए, कौन सा कंटेंट हमारा किस पर्टिकुलर पेज पे डिस्प्ले हुआ. इसके बाद हम सब देखते हैं गूगल लोगो. व्हाट इज द गूगल लोगो? गूगल डूगल फॉर द डे, the new Google Doodle for the day. What is the same? What is this? This is basically the advanced Google search engine which is used to which is used to search the result more favorite, more option, more favorable in the form of pictures, logos, as well as videos. Search results. What is the search results? अब सपोज करिए कोई भी कंटेंट अगर आपको सर्च करना है, कोई भी कंटेंट आपने सर्च किया, उस पर्टिकुलर कंटेंट से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ पेज वेब पेज पे अवेलेबल हैं, कितने नंबर ऑफ पेज वेबसाइट पे अवेलेबल हैं उस पर्टिकुलर कंटेंट. मीन्स अब सारे के सारे कंटेंट एक पेज पे तो डिस्प्ले कर नहीं सकते. मीन्स देयर इज नो इनफ स्पेस टू डिस्प्ले द ऑल कंटेंट विद इन वन पेज. मीन्स you required more than one page. So what are the which content display first page, which are content display second page, which content display third page, which content display more than one and nth page. So this the content priority or content ranking is shown by the page rank, is displayed by the page rank. Next one point here is the page rank. What is the page rank? Page rank basically the preference, or we can say that the ranking of the content on the website. Means what are the content, which content is ranked first, which content is ranked second, which content is ranked third on the website. On the behalf of that, the content will display on that page which have more page ranking, which display the first page, which have less ranking, which display in the less page or another page. Title. What is the title? Title, suppose करें if you have searched any content on the Google server, so what the first title, first line of the search result is called the title of the web page. सपोज आपने कोई भी कंटेंट सर्च किया, जो कंटेंट सर्च करने के बाद वो पर्टिकुलर साइट की पर्टिकुलर जो भी कंटेंट उसमें कंटेंट से रिलेटेड जो भी पहली लाइन होती है, फर्स्ट लाइन जो होती है, वो लाइन हमारी कहलाती है कि टाइटल ऑफ द वेब पेज. मीन्स इफ़ यू क्लिक ऑन दैट पेज you saw the title of that content will display on the title bar. Second things, what is URL? What is the URL? URL basically uniform resource locator. It display in the green line and it shows the address of that page stored on the website. Means ये जो आपका पर्टिकुलर पेज है, ये पर्टिकुलर पेज आपके साइट पे
किस एरिया में डिस्प्ले हो रहा है, किस पर्टिकुलर एरिया पे डिस्प्ले हो रहा है, किस पर्टिकुलर वेब सर्वर पे कंटेंट अवेलेबल है, किस पर्टिकुलर सर्वर के किस पर्टिकुलर पेज पे ये टाइटल डिस्प्ले हो रही है, इसको आपको शो करता है URL। नेक्स्ट पॉइंट इज द स्निपेट। व्हाट इज द स्निपेट? स्निपेट बेसिकली इट डिस्प्ले द ये स्नैपशॉट ऑफ दैट पेज। सपोज आप देखते हैं कि जब भी क्लिक करते हैं तो आपके राइट साइड में एक्चुअली पेज उसी पेज का एक स्नैपशॉट देता है। मीन्स अगर आप इफ़ यू क्लिक ऑन दैट पेज यू सा द पेज लाइक दैट। इस तरीके से क्या करते हैं हम ये देख लेते हैं बिना विदाउट ओपनिंग द पेज यू कैन डिस्प्ले you can saw the what are the content on that page. This is called snippet. Cached. What is the cached? Google crawl the web and takes snapshot of each page. When you click cache, you will see the web page as it looked when you last indexed it. Means जब भी आपका पेज देखते हैं हमारे पास एक स्नैपशॉट क्रिएट कर लेता है और जब भी हमारे पास उसको ओपन करते हैं तो लास्ट कंटेंट जो भी आपने सर्च किया था उस पेज पे वो क्या होता है हमारा कंटेंट कैश से डिस्प्ले कर देता है। द कैश लिंक वुड नॉट अपीयर फॉर साइट दैट हैव बीन इंडेक्स्ड और फॉर एनी साइट हुज ओनर रिक्वेस्ट दैट वी रिफ्रेन फ्रॉम कैचिंग देयर कंटेंट। ठीक है, मीन्स कैचिंग हमारे पास एक स्पेशल फीचर लेकिन ये हर साइट पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि कुछ साइट्स क्या होते हैं कि हमारे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप इस पर्टिकुलर साइट के कंटेंट को कैच नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट इज द सिमिलर। व्हाट इज द सिमिलर? क्लिक सिमिलर टू सी अदर वेबसाइट दैट आर रिलेटेड टू दैट रिजल्ट। मीन्स आपने अगर एक पॉइंट को सर्च किया है, एक पर्टिकुलर सर्च किया है तो आप ये भी देख सकते हो कि ये टॉपिक ये पर्टिकुलर कंटेंट कितनी नंबर ऑफ वेबसाइट्स पे अंदर अवेलेबल है। कहीं और किसी साइट्स पे किस साइट पे अगर हम चेक करना चाहें तो ये कंटेंट हमारे इस पर्टिकुलर साइट पे तो अवेलेबल है लेकिन ये कंटेंट किस साइट पे और अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी अवेलेबल, मीन्स डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल है। इसको हम चेक कर सकते हैं बाय यूजिंग द सिमिलर कीवर्ड। इंटेंडेड रिजल्ट। व्हाट इज द इंटेंडेड रिजल्ट्स? When Google find multiple results from the same website, the most relevant result is listed first, with other relevant page from that site indented below it. If we found more than 2 results from the same site, the remaining result can be accessed by clicking the more results from link option. अब देखिए इंटेंडेड रिजल्ट क्या है। इंटेंडेड रिजल्ट बेसिकली क्या है कि हमारे पास अगर एक साइट का मैंने कंटेंट सर्च किया लेकिन ये कंटेंट हमारे पर्टिकुलर ए साइट पे भी अवेलेबल है और ये कंटेंट हमारा पर्टिकुलर बी साइट पे भी अवेलेबल है, तो हमें किस पेज के किस कंटेंट पे एक्सेस करना चाहें तो ये हमें दिखाता है कौन सा इंटेंडेड रिजल्ट्स के। मीन्स हमारे सबसे पहले जो भी हमारा रिलेवेंट ऑप्शन होगा वो रिलेवेंट ऑप्शन सबसे पहले डिस्प्ले होगा। इसके बाद आफ्टर दैट वी कैन डिस्प्ले द अनदर रिजल्ट। इफ़ यू वांट टू सर्च यू वांट टू access more result for the same site same content you can just click the more result from the link more links and you will find the same and the results. Integrated results. What is the integrated results? Google search technology looks for the most relevant information across all type of internet content, so your results can include image, video, map, news, article, books and more. Means सपोज आपने कोई भी कंटेंट सर्च करना चाहे तो उस पर्टिकुलर कंटेंट से आप डॉक्यूमेंट सर्च कर सकते हो, आप इमेजेस सर्च कर सकते हैं, आप मैप सर्च कर सकते हैं, आप वीडियो सर्च कर सकते हैं, आप न्यूज़ आर्टिकल सर्च कर सकते हैं एंड मेनी मोर अदर थिंग्स यू वांट टू यू कैन सर्च इट। टूल्स एंड फिल्टर। दिस इज द अनदर फीचर ऑफ द गूगल सर्च इंजन विच इज मोस्ट widely used to search the results. What is this? Tools and search filters. The panel along the side of your results page will show the location as well as dynamically show the result mode and filter that are most useful for your particular search. Use these tools to filter and customize the search results you see. मीन्स सपोज करिए आपके पास बहुत ढेर सारे इसमें से रिजल्ट्स आपने कोई भी पर्टिकुलर कंटेंट सर्च किया, उस कंटेंट से रिलेटेड आपके पास नंबर ऑफ रिजल्ट्स आपको डिस्प्ले हो गए, लेकिन ये नंबर ऑफ रिजल्ट्स आप कौन सा रिजल्ट किस में डिस्प्ले हुआ, किस साइट पे डिस्प्ले हुआ, इसको अगर आपको कस्टमाइज़ करना है, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर कंटेंट हमें इसी एरिया का चाहिए, इसी साइट इसी वेब सर्वर का चाहिए या इसी लोकेशन से डिपेंडेंट होना चाहिए, मेरा ये कंटेंट सिर्फ आप इंडिया पे सर्च करो, ये कंटेंट सिर्फ आप यूएसए पे सर्च करो, ये कंटेंट सिर्फ आप यूके पे सर्च करो। मीन्स मैंने पर्टिकुलर एक कंट्री बताया कि ये कंटेंट आप इस कंट्री पे ही सर्च कंटेंट इस पर्टिकुलर कंट्री पे सर्च करो, इसके बाद आप कहीं पर भी इसको सर्च ना करो।
मीन्स मैंने क्या किया, यहाँ पर फिल्टर लगा दिया कि उस फिल्टर के बिहाफ पे ये चेक हुआ कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या आपको करना चाहिए, क्या आप नहीं करना चाहिए। लोकेशन, there is another feature in the Google search engine which is most widely used to search the content on the website. What is this feature? This feature is called location. Suppose if you search any content which is belong to city A, which is belong to city B, and which is also belong to city C, and which is also belong to city D. Suppose the same content belong to the another city. If you want to search only those content which is belong to city C, if you can't specify any location, the Google search engine show the result by the four cities. But you don't want, you want only the content will display which is belong to location A or which is belong to location C. So you can specify the location of the content which you want to search. मीन्स इस फीचर का यूज़ करके आप ये भी सर्च कर सकते हो कि हमें कौन सा कंटेंट किस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए, किस पर्टिकुलर लोकेशन से ये कंटेंट सर्च होगा। ये हमारा क्या कहता है, लोकेशन टूल बार। इन लोकेशन टूल बार यू कैन सेट द लोकेशन ऑफ द कंटेंट विच यू वांट टू सर्च। मुझे कंटेंट सर्च करना है, इस कंटेंट का कौन सी लोकेशन होगी, ये लोकेशन भी मैं खुद बताऊंगा। मुझे इस लोकेशन पे चाहिए, ये लोकेशन मैंने बताया। मुझे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे चाहिए, तो मुझे ये पर्टिकुलर लोकेशन बताया। मीन्स आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई भी कंटेंट, कोई भी लोकेशन, किसी भी कंटेंट का कोई भी लोकेशन आप चूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या कर सकते हो आप, अगर आपने सिलेक्ट कर लिया फिर आप उसका कर सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को यानी मीन्स लोकेशन को चेंज भी कर सकते हो। टाइप ऑफ कंटेंट, this is also most useful feature of the Google search engine. What is the type of content? Means when you search the result, you just specify the which type of content you want. Means जैसे सपोज मुझे चाहिए कि आपने चेक किया कि मुझे इंटरनेट के बारे में कंटेंट इन्फॉर्मेशन, गिव द इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटरनेट। मीन्स लेकिन द ऑल दोज इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस। मीन्स आप क्या चाहते हो कि मुझे इंटरनेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दो, लेकिन सारी की सारी इन्फॉर्मेशन किस फॉर्मेट में होनी चाहिए, इमेज के फॉर्मेट में, जीपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, या फिर सिर्फ ओनली डिस्प्ले ओनली दोज इमेज, दोज डॉक्यूमेंट विच इज इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ और विच इज इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट। मीन्स यू कैन स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द कंटेंट विच यू वांट टू सर्च। तो हाउ यू कैन स्पेसिफाई, just you go to the advanced option and set the content type, or another way you just type the content and after that you just specify the file type of that content. Means suppose I want to access the internet and I am just type in the Google search bar internet space file type colon, after that the file type means suppose I want to access the PDF, means file type colon PDF, file type colon PPTX, file type colon DOC. Means the Google search engine display only those content which is belong to the file type PDF. Otherwise, and all the content which is not related to that file type PDF will not be displayed. Recommended tools. What is the recommended tools? Limit the result to content that is more personalized to you, that you better suit what you are looking for. For example, see content from your friend's social or content from your geographical area or nearby. Bottom of the page. On the bottom of the page you just see what are the contents referred by the Google, means related search. This is a search which is added by the Google. If you search this content, the Google also add the content related search, means you can also search this content also, means this is related of your content and it is similar to the content which you want to search. And after that if you clicking the content, the alternative search result will be displayed about that content. More results. What is the more results option? If the web page or information you are looking for is not on the first page or of the search result, you can click next at the bottom of the page to see the more results. Suppose
just I told earlier the page rank. Suppose if you want to search any content and the content contain thousands page या 10,000 page या 1 lakhs page. So if you want to access first page, there is the one link is called next. Means if you click the next, you just see the page number 2, page number 2nd, and again you click the next, you just see the page number 3rd. If you want to go randomly on any pen, you just click the numbering of the page. Suppose you want, if you currently you are in the first page number and you just go to the page number 10, so just you click on the Google page number 10, so you just go randomly on the page number 10. Okay, what is the feedback? Next option is a feedback. What is the feedback? Suppose you are not satisfied the Google search results, so you can also submit the feedback because I am not satisfied the content which is provided by Google. ठीक है, तो आफ्टर देन यू जस्ट शो द गूगल फीडबैक्स. इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट बता सकते हैं कि मुझे इस टाइप का कंटेंट चाहिए, लेकिन जब भी मैंने गूगल पे सर्च किया तो पर्टिकुलर कंटेंट मुझे अवेलेबल नहीं हुआ. इस कंटेंट को कृपया आप क्या करें, हेल्पफुल करें कि आप इसको अपडेट करें. सेव सर्च हिस्ट्री. How we save the search history? What are the basic requirement to save the search history? The basic idea behind the save search history is that you can remember, you can memorize the content of the Google search result. मीन्स मैंने गूगल सर्च किया, तो जैसे आप सर्च करते हैं तो आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाती है. आपने जी प्रेस किया, सपोज कर आपको गूगल ओपन करना, जी प्रेस किया तो जी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे सारे के सारे कंटेंट क्या हो गए आपके सामने, सारे के सारे यूआरएल आपके सामने डिस्प्ले हो गए. इस पर्टिकुलर यूआरएल के बिहाफ पे आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने ये कंटेंट चेक किया, मैंने ये कंटेंट चेक किया, मैंने ये कंटेंट चेक किया, मैंने ये चीज़ किया था कि ये मैंने साइट सर्च किए थे. इसके साथ साथ क्या होता है कि ऑटोमेटिक ये हिस्ट्री अपडेट होते रहते हैं. ये हिस्ट्री अपडेट इसलिए करते हैं कि अगर आपको कोई कंटेंट मिस हो रहा, कोई यूआरएल मिस हो रहा है, तो आपने अगर लास्ट टाइम पे उसको सर्च किया था तो उस कंटेंट का कोई भी एक करेक्टर प्रेस करके आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंटेंट हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, ये यूआरएल मैंने इससे पहले कभी सर्च किया था कि नहीं सर्च किया था. Delete search history. It is also a feature on the Google search bar which is used to delete the search history. Basically it is the feature of the web browsers. In the tools option you just go the search history, remove search history, and all the history which is stored on the system will be clear. No one can access how much page you have searched. Means you just delete all the related record, all the history of the Google search engine. Your Google search history may be stored in your web browser in the Google toolbar or in your Google web history. See instruction for deleting the past search for all the location by clicking the link below. Clear your browser search history, clear your Google toolbar search history, clear your Google web history. By using clearing by these three history, you can remove all the content of your related search from the system or Google search engine. Clear the Google web history. How we can clear the Google web history and what are the basic purpose? Suppose करिए if Google clear the Google web history, इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके ब्राउज़र पे जितने भी नंबर ऑफ गूगल कुकीज़ क्रिएटेड हैं, सारी की सारी कुकीज़ क्या कर देगा, आपको इरेज कर देगा. जब कुकीज़ सारी की सारी डिलीट हो जाएंगे तो उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड जितने भी कंटेंट थे सारे के सारे कंटेंट भी क्या हो जाएंगे, आपके रिमूव हो जाएंगे. मीन्स नो कैन एक्सेस, no one can know how many pages or what are the pages you have accessed. Means you just remove your last previous action which you perform, you just remove. इसके साथ साथ आप ये देखते हैं कि मैंने जो भी कंटेंट किया था, जो भी टास्क मैंने किया, वो टास्क हमारा क्या हो गया, पूरा टास्क रिमूव क्लियर कर दिया गया कि अब कोई भी इस कंटेंट को चेक नहीं कर सकता, कोई भी इस कंटेंट को रिमूव नहीं कर सकता. इससे प्लस पॉइंट एक और भी होगा कि मैंने किस सिक्योर साइट पे विजिट किया था, किस कंटेंट को विजिट किया था, इस कंटेंट को भी कोई देख नहीं सकता. मीन सपोज करिए अगर हमारी पर्टिकुलर उस साइट भी कंटेंट को रिमूव करे तो पर्टिकुलर किसी को नहीं पता चलेगा मैंने कौन सी साइट विजिट की थी, किस कंटेंट के साथ विजिट की थी. तो इससे आपका डेटा की सिक्योरिटी इंप्रूव हो जाएगी कि आप डेटा पूरा आपका सिक्योर हो जाएगा. डू इट योर सेल्फ. इन दिस फीचर अब आपके सामने एक दो क्वेश्चन दिए गए हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ गूगल सर्च वर्क.
आपको ये एक्सप्लेन करना है कि गूगल सर्च कैसे वर्क करता है, कैसे गूगल सर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या गूगल सर्च के फीचर हैं और कैसे ये वर्क करता है किसी भी कंटेंट को सर्च करने के लिए। सेकंड ऑप्शन इज द हाउ सेव सर्च हिस्ट्री स्टोर एंड डिलीट। आपको ये चेक करना है कि मैंने कैसे कोई भी सर्च हिस्ट्री है, कोई भी सर्च है उसको कैसे मुझे स्टोर करना है और कैसे मुझे डिलीट करना है। ठीक है, कैसे इसको स्टोर करेंगे। सपोज करिए आपको सर्च हिस्ट्री आपको डिलीट करनी है, तो आप देखेंगे गूगल टूल्स, वेब ब्राउज़र के टूल्स मेनू में जाइए। टूल्स मेनू में जाने के बाद आपको सामने वहाँ पर एक ऑप्शन आता है डिलीट द सर्च हिस्ट्री। जब आप डिलीट द सर्च हिस्ट्री ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऑटोमेटिक एक ऑप्शन आता है कि आप इसको क्या कर सकते हो, कंटेंट को डिलीट कर सकते हो, मीन्स इसके पेज को डिलीट कर सकते हो, उसके जो भी कंटेंट है, जो भी हिस्ट्री है उस हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो। जब आप हिस्ट्री डिलीट करते हैं तो उस हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी रिमेंबर पासवर्ड होते हैं, जो भी आपने पासवर्ड यूज किए हैं, उस पासवर्ड को भी क्या कर सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो। इससे आपको फ़ायदा होगा कि आप कोई भी आपका पासवर्ड, आपका डेटा कोई भी अंदर पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टूडेज in this session. The next topic which is left, we are discuss about that at the next session. Thank you very much.